Hello student, today we are discussing how to secure good marks in Mathematics 1 KAS 103 and we will also discuss the model paper. I am Dr. Pankaj Goyal. We start from unit number 1. The unit 1 the matrix, unit 1 the topic is matrix. The first important topic in this unit is eigenvalue, eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. First you study the eigenvalue and eigenvector. Okay. The second important topic is Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem. In this Cayley-Hamilton theorem, the three types of questions are there. The first type is verify Cayley-Hamilton theorem. Second type is find a inverse. And third type of question is find the value of given matrix function. Let us suppose we say a की power 6 plus 5 a की power 5 plus a cube and so on. And what is the Cayley-Hamilton theorem? Cayley-Hamilton theorem means every square matrix satisfied its characteristic equation. That means if we have a characteristic equation like lambda cube minus 3 lambda square plus 5 lambda plus 2, this equal to 0. So Cayley-Hamilton theorem says that is a cube minus 3 lambda 3a square is minus 3 a square plus 5a plus 2. Write always here I and that is equal to null matrix. This is the Cayley-Hamilton theorem. For finding the inverse, multiply this whole the equation as A inverse and then the rest of terms we will transfer the in the right hand side and we will find out the inverse. And in eigenvalue, eigenvector, we find the this characteristic solutions of characteristic equation for 3 by 3 matrix. If A is a 3 cross 3 matrix, we write the equation as lambda q minus C1 lambda square plus C2 lambda minus C3 equal to 0. Where C1 क्या है आपके पास? C1 is the sigma of delta II, sum of diagonal element. These are the sum of diagonal element, right? And this C2, what is C2? This C2 is minor of AII, यानी diagonal element के minus sum of minor of this, minor of AI sum, that is C2, and C3 is the determinant of A. So by this, if we can find the value of lambda, using the calculator, we find the value of lambda, then the out of 10 marks, you will secure 4 marks, at least 4 marks you will secure, right? And after finding the eigenvalue, you should check the answer by this lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. This should be equal to sigma of AII. And second check is lambda 1, lambda 2, lambda 3. This should be equal to determinant of A. First we check this and then proceed further. Otherwise the marks will cut. So we are just discussing first the eigenvalue and eigenvector and always solve the questions with equal eigenvalue. Equal eigenvalue means, let us suppose if we say lambda equal to 2, 2, 5. So always the problem is for this 2, 2. Solve the questions, just read the book and you just select the question which have the equal eigenvalue. Now comes the topic number 3. The topic number 3 is find the rank of the matrix. Rank by normal form.
The procedure is first convert the given matrix into convert given matrix given matrix into equal form in equal form. Okay, and after converting equal form we will find the rank, and then using the Coulomb transformation. Now use the Coulomb transformation. Use Coulomb transformations. Convert the given matrix into normal. What is the normal form? The first type of normal form is IR. IR means if the rank of matrix is R and whole matrix convert into identity matrix, then the first form is IR. And the second normal form, second one, let us suppose a matrix is A, that is 3 cross 2, and we say rank of A is, let us suppose 2. Okay, if we convert this matrix into identity matrix, in that case we will get this I2, okay, and 1 0 row, like this. This is the second form. You can say this IR, this 0, second normal form. Similarly, the third normal form, if I say this is A2 cross 3 and rank of A, that is equal to again 2. So what we will get? We get that 1 0 0 1 0 0, like this. Okay, is the second normal form. Third normal form, that is IR 0. This normal form will comes when there is no 0 row but there is some 0 column. This will come when the some 0 rows are there, right? And fourth one is, let us suppose I say the matrix is let us suppose 3 cross 3 and rank of the matrix is 2. In that case, one row and one column will be 0. So 1 0 0 1 0 0 0 0 0, like this. The fourth one normal form, this one, like this. We say this is IR 0 0 0. This is the fourth normal form. So rank by normal form means convert the given matrix into identity matrix. And how we will convert the identity matrix? We will convert identity matrix. First convert the given matrix into null form and then into normal form. So either these out of these four forms we will get a one form, and then we will write that the order of identity matrix is this R, so rank of the matrix equal to R. This is the third type of questions, matrix. And then we come the four types of questions. Fourth one. Fourth one is the system of equations. System of equations. Here you will find the questions of lambda and mu type. Find the value of lambda and mu. Okay. For the system of equations, if we say non-homogeneous equation, non-homogeneous equations, non-homogeneous equations, we have the solutions like this one. If I say this rank of A is not equal to rank of AB, let us suppose we say the system of equation is AX equal to B. So rank of A is not equal to rank of AB, then we say inconsistent. Inconsistent equation or no solution, right? And if rank of A that is equal to rank of AB, we say solution exists, consistent. And these are the two parts like this. We say first one as if this is equal to number of variables, right? Then we say the unique solutions. And if this is less than number of variable n, then we say infinite solution. Okay, so this unit 1.
Now comes the unit 2. This is unit number 2. The first important topic is Leibniz theorem. Leibniz theorem. Find yn 0. Here are the two types of question always comes in examination. First type of questions, let us suppose I say y equal to some x square cos x and say find yn. In that case, just apply the Leibniz theorem directly. X square cos x. Write this first function same and the derivative of cos x plus nc1, derivative of x square is 2x, and n minus 1 and derivative of cos x plus this nc2 into 2 and this d of n minus 2 cos x. If you don't know the formula of this cos x, no problem, you will get 1 mark. This is a 2 mark question, comes in examination. And second type of question is find the yn 0. Find the yn 0. For example, if I say y equal to sin m sin inverse x, find yn 0. So these type of questions, at most 8 questions will be there, right? Like this first question. Second question is y equal to sin inverse x whole square. Third question is y equal to e की power m cos inverse x and e की power m sin inverse x. These are other questions, right? And the next question is this is 3. This question is 4th. Fifth question. Fifth question is y equal to tan inverse x, right? And sixth question is y equal to x plus square root of x square plus 1 whole power n. And seventh question is y equal to logarithm of x plus root x square plus 1 whole power n. m ले लेते हैं whole power m. These are the like this 7 or 8 questions are there. So you just solve this one. Okay. Now the second topic. Second topic in this chapter is envelope. It's an important topic. This chapter is envelope. Find the envelope of this one. In envelope, there are the first type question. What is the envelope? If you have the equations, let us suppose I say y equal to mx plus a upon m. So envelope, what is the envelope? This is the equations of curve where m is a parameter. M is a parameter, right? What you do? Just differentiate this with respect to m. क्या करना है आपको m के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर दैट इज m and then what we will get 0 equal to x minus a upon m square. Take this equation number 1, this is equation number 2, and by solving this eliminate m using first and second, eliminate this m and we get the value of this equation of envelope. And the second type of this method is in this case, if we can represent the given equation of curve h, a lambda square plus b lambda plus c equal to 0. The equations of envelope directly you can write envelope is b square equal to 4ac. So many questions you can solve directly by this. For example, if I say y equal to mx plus root 1 plus m square, you can solve this one. How can you solve? You can write y minus mx whole square equal to 1 plus m square and then write this equation in the form of this and directly you can write the equation of n. This is a very important method, right?
and a very easy method, important method. And similarly the third one, two parameter. If we have the two parameter, then how can we find out the equation of envelope? For example, let us suppose I say x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. In this case, there is a given like a square plus b square equal to 1, like this given, right? So in this case, differentiate with respect to a. What we get? Minus of x square upon a cube minus. Now you can see that b is a function of a. Write this minus of y square 2 times of this and b cube, and write this db upon dA, that is equal to 0. And similarly by this equation you can write 2a plus 2b db upon dA, that is equal to 0. And solving these two equations, this equation number, let us suppose a and b, let us take this one as first equation, right? First and second, this is second. Put the dB upon dA from second equation to first equation, and then by solving we can get the equation of envelope. Okay, like this you can find out the equation of envelope. So you can write this as, I say x square upon a cube is equal to y square upon b cube, and value of this is minus of b upon, sorry, minus of a upon b. Put here minus of a upon b. We get from here x square upon a की power 4, that is equal to y square upon b की power 4. So convert this given equation as numerator as the फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन थे उसको आप क्या करें, फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट कर लें. फर्स्ट टर्म थी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे अपॉन ए स्क्वायर. इसके भी नोमिनेटर को ऐसे लिख लेते हैं, डी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस अपॉन बी स्क्वायर. इफ वी add these two, we get the left hand side of second equation, right? So write this x square upon a square plus y square upon b square, y square upon b square, right? And this upon a square plus b square. Now comes, see, these are the two equations, equation number 1 and this equation number 2. From equation number 1, this is 1, and here is, let us suppose, given as c square. Here is c square. So write this 1 upon c square. Right here, this is equal to 1 upon c square. So take this first, second, and this third. By first and third, find a or a square, whatever you write, 1. And this second and third, find the b square. Okay, and put these two in equation number 2. A square plus b square equal to c square, and we get the equation of n by this. Okay, and the third important topic in this is the theorem, mean value theorem. That is the mean value theorem. Mean value theorem. So there are the three theorems are here. That is the mean value theorem, Lagrange mean value theorem, Cauchy mean value theorem, Rolle's theorem. Right? So always in the questions paper, the previous question, when you see the previous question paper, we find that the verifications of these theorems always come, right? So just do the verifications of these theorems. The unit number 2 complete. Now comes the unit number 3. अगर आप ये सब important topic इनको करेंगे तो I am sure that you will get very good marks. Now comes the unit 3. Unit number 3. यूनिट 3 में हम सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक हमारे पास है, इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा. इसके आपके क्वेश्चंस करने हैं. इसमें आपको स्पेशली लैग्रेंजे मल्टीप्लायर, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर आप इसमें जरूर करें. और इसमें भी लैग्रेंजे मल्टीप्लायर में एक हमारे पास क्वेश्चन है
इसके अंदर आपका बॉक्स आपको गिवन है, गिवन बॉक्स विद गिवन कैपेसिटी एंड द लीस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड, एंड सिमिलरली ओपन बॉक्स क्लोज बॉक्स, दो क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से हमारे पास। एंड अदर क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा फिर ये आपका लेट अस सपोज कि मटेरियल इज गिवन है, तो हमें कैपेसिटी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एंड इसमें डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो AKTU के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन कर्व, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके पास, आई से फाइंड द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कोई आपके पास पॉइंट आपको गिवन होगा, लेट अस सपोज आई से 1 2 -1 to the given curve x square plus y square plus z square equal to 24, लाइक दिस। इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हमें सोल्व करना है। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आता है आपके पास जैकोबियन। जैकोबियन जैकोबियन में इम्प्लिसिट ये जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन में जैसे वहां पे मान लीजिए आपके दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे मान लीजिए मैं आपके वजह से लेता हूँ यू स्क्वायर वी, मैंने लिया वाई प्लस जेड यू डब्ल्यू, हम ले लें जेड इक्वल टू लेट अस सपोज यू वी डब्ल्यू। इसको आपको आर मानना है, इसको एस मानना है, इसको टी मानना है, देन सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, जो भी कई साल से एग्जाम में आया नहीं, हो सकता है इस बार आ जाए। दैट इज यू इक्वल टू एक्स अपॉन, आपने देखा होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, एंड वी इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, एंड डब्ल्यू इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। दो तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। थर्ड टाइप के क्वेश्चन तो इसमें है आपके पास, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द यूवी डब्ल्यू। इनको, इन सब क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये आपको 0 दिखाना है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। एंड जिसके सेकंड पार्ट में आपको फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, इस तरह का आपको क्वेश्चन करना है। अब आते हैं इसमें थर्ड। थर्ड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो है यूलर थ्योरम। और मैंने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यूलर थ्योरम में क्या कहता है, अगर z इक्वल टू एफ ऑफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री लेट अस सपोज n मान लेता हूँ, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहते हैं एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये होते हैं, राइट। और इसी की सेकंड ऑर्डर की आपकी जो इसकी थ्योरम्स है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी यू, यहाँ पर होगी जी डैश यू -1। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर का आंसर, इसी को हम जी यू कहते हैं, ओके। इसके देखिए क्वेश्चन इस तरह से होंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख दूं u इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई दिस अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट का काम केवल क्या है, ये केवल आपको डिग्री बताएगा। तो यहाँ पे u आपका क्या है, होमोजीनियस आपका फंक्शन नहीं है, बिकॉज u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। तो उस केस में आप क्या करते हैं, इसमें हम हमेशा लिख देते हैं साइन ऑफ u इक्वल टू वट एवर फंक्शन रिटेन है, यहाँ पे लिख दीजिए दिस अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास एफ यू की वैल्यू हो जाएगी साइन यू हो जाएगी, एंड एफ डैश यू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा कोस यू, ओके। एन आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स को मुझे लिखना है लैम्डा एक्स, वाई को मुझे लिखना है लैम्डा वाई। अगर आपके पास ये जो जेड फंक्शन है, जेड ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इसकी वैल्यू आ जाए लैम्डा की पावर एन
जेड ऑफ एक्स वाई। ओरिजिनल फंक्शन अगर हमारे पास वापिस आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ डिग्री एन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, दो फार्मूले हमें इसमें अप्लाई करना है। एंड इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास, इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है आपके पास, तो कम से कम इसमें 4 ये टॉपिक हमें करना पड़ेगा। फोर्थ है इसमें टेलर थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल आपके पास आती है टेलर थ्योरम। देखिए टेलर थ्योरम आपको क्या कहते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/(1) एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस 1/(2) एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2h के एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई एंड दिस प्लस 1/(3). इस बार a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं, एच क्यूब एक्स 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 3h² के एफ एक्स एक्स वाई, ओके, एफ एक्स एक्स वाई प्लस 3h² ओके एक्स वाई वाई प्लस के क्यूब एफ वाई वाई एंड दिस सोन। तो ये आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन टेलर सीरीज का आएगा आपको इस फार्मूले को लिखना है एंड यहाँ से ए बी एंड एच के इनकी वैल्यू को पुट करना है आपको इसमें, ठीक है ना, वैल्यू पुट करना है और देन इसको कुछ नहीं करना, क्या बचा अब आपके यहाँ पे लिख देंगे ओल डेरिवेटिव एट ए बी, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर ये ए बी एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी बचेगा डिफरेंशिएशन। अगर नहीं भी हो पाएगा तो उस केस में हमारे पास कुछ मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे, तो हमें ये काम जरूर करना है, थ्योरम आपको लिखना है। अब देखिए ए बी एच के कैसे दिया, वो कैसे पता लगेगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई क्वेश्चन मैंने लिया, मैं तो कहता हूँ आपको एक्सपेंड लेट अस सपोज e की पावर x sin y एट पॉइंट, मान लीजिए मैं कह देता हूँ आपके पास है 1 एंड π/3 है, तो 8 जहाँ पे लिखा होगा वो ए बी की वैल्यू होगी। और हम क्या मान के चलेंगे, x इक्वल टू ए प्लस एच मानेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी π/3 है। अगर आप इसमें a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी x-1। सिमिलरली y की वैल्यू को आपको क्या लिखना है, b प्लस के लिखना है। p की वैल्यू क्या है, π/3 है, तो k क्या हो जाएगा आपका y माइनस π/3 हो जाएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में आप ए बी एच के लिख दीजिए, ज्यादा ना हो तो कम से कम आप इतना काम इसमें जरूर करें, ओके। एंड फिफ्थ एक टॉपिक है वो है आपके पास एरर। एरर में अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करने का आपके पास एक मेथड है, ये क्वेश्चन कई बार से भी आया नहीं है, ये हो सकता है इस बार आपका पेपर में आ जाए। तो अप्रोक्स वैल्यू में आपको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास का 1.03 होल पावर में कहता हूँ आपका 0.98, यहाँ पे का प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मान लीजिए 2.01 1.01 एंड प्लस 1 होल पावर 1/3। आपसे कह रहा है कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करें, किससे, आपको एरर से फाइंड आउट करना है, राइट, फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ दिस वन। इसके अंदर जो फार्मूला आपको लगाना है, फार्मूला आपको क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे 1.0 तो पहले फंक्शन मानना पड़ेगा। तुमने कहा फंक्शन x की पावर यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसी रहने देते हैं, इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं 2, ये पावर ले लेता हूँ यहाँ पे 3, ओके, ऐसे लेते हैं 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 1 और h की वैल्यू मान लेता हूँ आपके 0.03। तो बजाय h कहने के एरर में आप इसको कहेंगे एरर इन x। सिमिलरली y को मान लीजिए 2 और डेल्टा y को मान लीजिए 0.01, ओके। जिसको वैल्यू होगी, जो f की जो वैल्यू होगी उसको आपको क्या लिखना है, उसको आपको लिखना है f ऑफ ए बी प्लस डी एफ लिखना है। व्हाट इज डी एफ, डी एफ क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, डेल एफ अपॉन
डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एरर हो जाएंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल के ये पॉइंट आप इसमें रख देंगे दिस, और एरर रख देंगे दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करना है आपको इसको। देखिए यहाँ से हमारे पास 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 जो है हमारे पास, ये है हमारा मल्टीपल इंटीग्रेशन है, मल्टीपल इंटीग्रल। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास है दिस वन, एक आपको फंक्शन एक्स वाई दिया है, मान लीजिए पहले dx के रेस्पेक्ट में हो रहा था, फिर dy, राइट। यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आपको दी होगी, लाइक x इक्वल टू 0 2 फॉर एग्जाम्पल आई से मान लो y है, तो यहाँ पे आपको दिया होगा y इक्वल टू सम 1 to 2, ऐसे कुछ करके दिया होगा। और मैं इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करके हम इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी कि पहले y के रेस्पेक्ट में कर दें, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में कर दें, और इस इंटीग्रेशन को लिख दें एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इन दैट केस इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सेकंड है इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, इसके क्वेश्चन हमें करना है। इसमें स्पेशली पोलर फॉर्म में चेंज करने का आपको क्वेश्चन इसमें जरूर करना है। कार्टेशियन से पोलर फॉर्म के क्वेश्चन करना है। एंड थर्ड है इसमें वॉल्यूम एंड मास, वॉल्यूम एंड मास, इसको आप जरूर सोल्व करें। यहाँ से आपका यूनिट 4 काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आता हूँ इसमें यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 में हमारे पास है, आपके पास एक तो है आपके पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाइव। फाइव स्केलर फंक्शन है तो उसको हम कहते हैं डेल फाइव। और डेल फाइव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डेल फाइव बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड के, ये होता है। तो ये डेल फाइव क्या क्या डिनोट करता है? सबसे पहले डिनोट करता है आपका नॉर्मल टू गिवन सरफेस, नॉर्मल टू गिवन सरफेस, ये आपका डिनोट करता है, राइट। अगर आपसे कहे फाइंड द आउटवर्ड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, तो आपको डेल फाइव फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये डिनोट करता है आपका, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो करेगा इसमें दिस वन, ये करता है आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डेल फाइव मॉडुलस को डिनोट करेगा। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सम सरफेस फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए। एंड इसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल फाइव डॉट ए कैप से आप डिनोट करेंगे। इतने तरह के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, ये हम इसको सोल्व करके देख लेंगे। तो इसका सेकंड टॉपिक आ जाता है इसमें, ग्रेडियंट के बाद आता है आपका सेकंड वन, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल डॉट वी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि वी के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के है, डेल डॉट वी, डेल क्या है मेरे पास? वो डेल क्या है? डेल है मेरे पास डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होगा। डेल डॉट वी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेल वी वन अपॉन डेल एक्स, डेल वी टू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे और यहाँ पे साथ में आपके पास होगा। देखिए डाइवर्जेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो डाइवर्जेंस में आपको एक उल्टा रूल होता है कि अगर हमारा डाइवर्जेंस ऑफ v ये हमारा जीरो हो जाए तो v को हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन ये आपको प्रूफ करना है, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना है कि सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन का मतलब आपको क्या कर रहा है, एक तरीके से आपको उसका डाइवर्जेंस प्रूफ करना है। ऐसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है कर्ल। कर्ल ऑफ समथिंग वेक्टर मान लेते हैं आपके पास है वी मान लीजिए है। कर्ल ऑफ वी को आप डिनोट करोगे डेल क्रॉस वी से। आपको पता ही है कि हमारे पास डेल क्रॉस क्रॉस फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये डिटरमिनेट होता है आई जे के। यहाँ पे इसको लिख देंगे डेल बाई डेल एक्स, इसको आप लिख देंगे डेल अपॉन डेल वाई, इसको आप लिख दीजिए डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या होगा, डेल का होल फंक्शन होगा, राइट। और वी के कंपोनेंट लिख देते हैं v1 v2 v3। इससे आप इसको कर्ल को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये जो कर्ल हमारे पास है, अगर हम v को लीनियर वेलोसिटी मान लें, इफ आई से v इज लीनियर वेलोसिटी, अगर आपकी v लीनियर वेलोसिटी सपोज कर लो आप इसको, तो उस केस में ये जो हमारे पास कर्ल v है, कर्ल ऑफ v, ये जो होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। बिकॉज हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर r होता है। तो अगर हमारे पास ये कर्ल v की वैल्यू 0 हो जाए, इफ कर्ल ऑफ v, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो 0 आने का मतलब हम क्या कहते हैं, इसको v को हम कहते हैं v इज ए रोटेशनल वेक्टर। क्या बोलेंगे आप इसको, इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन इसको बोलते हैं। तो इस केस में आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है, इसके कहता है फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। तो इस केस में अगर आपका v इरोटेशनल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एक फाई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिस फाई फंक्शन के डेल फाई की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास v के इक्वल होगी हमेशा। इस फाई फंक्शन को हम कहते हैं फाई इज स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल ये फाइंड आउट करने के लिए पेपर में बहुत बार हमारे पास आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम डेल आर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको डी फाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो जाएगा v डॉट डी आर, दैट इज इक्वल टू v1 dx प्लस v2 dy प्लस v3 dz। और यहाँ से आप इसको फाई को फाइंड आउट करेंगे, और फाई जो होगा हमारा स्केलर पोटेंशियल होगा। इसी कंडीशन का दूसरा नाम, जो हमने कंडीशन अभी लिखा है, इसी कंडीशन को दूसरा नाम ये भी होता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कर्ल एफ आपके पास 0 है, तो इस एफ को आप क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है ना। और तीसरा इसी में हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन मैं आपको दे दूं, यहाँ से लेटेस्ट सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एफ डॉट डी आर है, और अगर आपका कर्ल एफ 0 हो जाए, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोलेंगे। अगर आपसे कहीं पे आ जाए कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आप इसमें प्रूफ करके बताएं, तो आपको कर्ल एफ को 0 करना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये जो हमारे वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फाइव पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस कैन बी रिटन एज फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हुआ वेक्टर हमारा डिफरेंशिएशन। इसी में हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन। इसमें आप अगर ज्यादा ना कर पाए, तो इसमें कम से कम आपको एक थ्योरम आपको इसमें जरूर करना है, एक थ्योरम इसमें जरूर करें। वेक्टर इंटीग्रल में तीन सूत्र की तीन थ्योरम है हमारे पास। एक है हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना। एक हमारे पास इसके अंदर है आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम आप कर सकते हैं इसमें। और एक आपके पास थ्योरम है जिसके क्वेश्चन हमारे में बार बार आया है, इसमें कई बार एग्जाम में आया है, आपको दिखाता हूँ इसमें। ग्रीन थ्योरम, राइट। तो ग्रीन थ्योरम है, और आपका तो ग्रीन थ्योरम आप इसमें जरूर करेंगे।
तो इसमें एक ही थ्योरम आप इसमें जरूर कर लीजिए, दैट इज ग्रीन थ्योरम। अगर ज्यादा आप ना कर पाए तो ग्रीन थ्योरम, इसका वेरिफिकेशन आप करें। और उसके अलावा जो बाकी जो दोनों थ्योरम्स हैं, उन दोनों थ्योरम का आप क्या कर लें, उनका आप स्टेटमेंट याद कर ले, तो वहां से आपका काम हो जाए। क्लियर? तो ये हमारे पास देखिए वो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मेरे पास एक मॉडल पेपर है, मैंने एक बनाया आपके लिए। मॉडल पेपर को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। ये सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर बना को डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ कि एग्जाम में जो आपका अभी तक का जो पैटर्न है पेपर का, वो किस तरह से आता है। एग्जाम में जो कहता है वो कहता है हमारे पास तीन आपके पास सेक्शन होंगे ए बी सी। इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, जो आपको सबके सब सोल्व करने 20 मार्क्स। इसमें आपको आउट ऑफ 5 अभी तक का जो ट्रेंड है 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, एंड 3 into 10 ये हमारे पास 30 मार्क्स होगा। सेक्शन सी में हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे होंगे। 5 क्वेश्चन आर देयर, दिस 5। हर एक यूनिट से आपको इंडिविजुअल यूनिट से एक क्वेश्चन होगा। इसमें एक एक पार्ट ज्यादातर भी आपका करा रहा है, और ईच पार्ट आपका 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स, 2 पार्ट दिए होंगे, एक कराएगा, या 3 दे के 2 भी करा सकता है, 10 मार्क्स का होगा। तो 10 into 5 ये आपका 50 मार्क्स का अभी तक का पेपर का पैटर्न रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा मॉडल पेपर। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में, राइट। इनमें आपको थोड़ा सा पेपर का पैटर्न वो थोड़ा बता देता हूँ, इसके अंदर कैसे चल रहा है इसमें, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है फर्स्ट वन, अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, ऑल पार्ट, राइट। इसमें जैसे पहले कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए की आइगन वैल्यू आपको गिवन है, आपको इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। तो क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यू मान लीजिए मैंने कहा लैम्डा है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास लैम्डा स्क्वायर होती है, पता ही है आपको। ए इनवर्स की क्या होती है, ये होती है आपकी 1 अपॉन लैम्डा होती है। ऐसी अगर मैं के ए की कहूँ तो क्या होगी, वो आपकी के लैम्डा होगी। तो वैल्यू ऐसे इसमें रख के तो इन सबको जो है ऐड कर दीजिए, तुम्हारे पास इसकी टोटल आइगन वैल्यू मानी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से आप इसमें सोल्व करके बता सकते हैं। अब ये सेकंड वाले में कह रहा है ए जे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करके बताना है कि आई ए हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सेकंड वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आप इसको मान लीजिएगा बी इक्वल टू आई ए मान लीजिए। बी थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थीटा ए थीटा। आई थीटा की वैल्यू ए हो जाएगी ए थीटा। ए क्या दिया है, ए आपको दिया हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इक्वल टू ए थीटा होता है, ए इक्वल टू ए थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई इंटू ए, तो यहाँ से आपका क्या होगा, वापस बी आ गया, तो इसलिए हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाएगा। लाइक दिस आप सोल्व करके बता सकते हैं, राइट। सिमिलरली दिस वाई एन, आपको प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू ये आपको गिवन है। इसमें एक बार इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, वाई वन निकालिएगा, देन एन टाइम इसको डिफरेंशिएट करिएगा, लेबनिज थ्योरम से सोल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट वन प्लस एम स्क्वायर मतलब फाइंड आउट करना है। इसको आप इसमें ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी में कन्वर्ट कर दीजिए, और एन लब की केस हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यूलर थ्योरम का आ गया। इसमें यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले आप एफ की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ से एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एफ एक्स माइनस वाई को, माइनस एक्स माइनस वाई को राइट हैंड साइड में आप ले जाइए। माइनस एक्स माइनस वाई को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट करने पे क्या आएगा, यहाँ से एफ की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास इसमें एफ, यहाँ से आ जाएगा एफ इक्वल टू कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन। अब देखिए ये अब आपको लगेगा कि हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह आ गया, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए। अब इसको फाइंड आउट कर दीजिए। एरर, एरर में तुम्हें पता ही है कि आपके पास आर आई इक्वल टू ई दिया है, लोगरिथम लेके डिफरेंशिएट कर दीजिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, फाइंड ऑफ एरिया ऑफ दिस। ये जो आपका एफ आर है, इसके अंदर आपका डेल आर दिया गिवन है। ये जो आपका है, ये आपका इंटीग्रेशन से सोल्व करना, 5 वाला क्वेश्चन है।
डेल फाई है एफ आर फाइंड आउट करना है, राइट। जब आपको एफ आर फाइंड आउट करना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें लेट डेल एफ इक्वल टू दिस वन, डेल एफ आपको वैल्यू गिवन है, राइट। तो डेल एफ को अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ वेक्टर मान लें, डेल एफ इसको सोल्व करके बता देंगे एफ आर को। इसके अंदर एक आपका फार्मूला होता है डेल एफ आर, ये होता है हमारे पास एफ डैश आर अपॉन आर वेक्टर आर होता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है डेल एफ, एफ यहाँ पे वेक्टर आपको गिवन है, तो ये वाला फार्मूला लगाने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें आप एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे, एफ क्या है मेरे पास, एफ एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, वेक्टर है यहाँ पे हमारे पास, डेल एफ की वैल्यू दिस वन है। इसमें एफ आर की वैल्यू निकाल के बता देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू को आपको 0 दिखाना है, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन करने, सेक्शन बी जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें 3 पार्ट करने होंगे, 5 दिए होंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले इसमें लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा फाइंड आउट करके फिर आप इसमें वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 पार्ट इसमें रहेंगे, अगर आप कहीं सही आ गए तो 4 नंबर आ जाएंगे, इस पर आपके 6 नंबर आएंगे। 3 वेक्टर, 2 मार्क्स फॉर ईच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन इसका जैकोबियन, जैकोबियन क्वेश्चन सोल्व करना है। ये मल्टीपल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन है चेंज ऑफ वेरिएबल, तो चेंज ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन से आप सोल्व कर देंगे। इसके अंदर क्या करना है, इसमें x प्लस वाई को u मान लेना और 3x माइनस 2y को v मान लेना। तो ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेक्टेंगल का कन्वर्ट करके तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ से देखिए आते हैं सेक्शन सी। जैसे मैंने बताया सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन में ईच पार्ट आपको, हर एक क्वेश्चन में 1 या 2 पार्ट आपको कराएगा। पहला क्वेश्चन केलन-हेमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई करने के लिए कहे तभी वेरीफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए का मतलब क्या हुआ, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी फाइंड आउट करके लैम्डा की जगह पुट करेंगे, सेटिस्फाइड करा दीजिए। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगी, जैसे मान लो मेरे पास आ जाए ए क्यू माइनस 3 a² प्लस 2a प्लस मान लीजिए 2i आ गया, इससे इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहाँ पे कोसेंट आएगा उसी कोसेंट वो इसका आंसर होगा। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको पहले इकोनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इकोनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। जो भी लास्ट की जो वैल्यू होगी ए बी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। 3 कंडीशन लगा देंगे। नो सॉल्यूशन में क्या, नो सॉल्यूशन में लिख देंगे रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ जाएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये इक्वल टू मान लीजिएगा 3, और इस केस में आपकी लास्ट की एक रो को 0 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को 2 ले लेंगे, सोल्व हो जाएगा। नॉन फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, एंड देन इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका यूनिट, आपका 1 का हो गया। यदि सेकंड यूनिट का ये ने थ्योरम वेरीफाई कराया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें देखिए एनएलएफ का 2 पैरामीटर क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने आपको सोल्व करके आप बता सकते हैं। अब हम आते हैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। इसमें आपका एक तो ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सो दैट द लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये आपका एरर का क्वेश्चन है, एरर। और ये हमारे पास क्या है, ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको टेलर सीरीज के क्वेश्चन से आप सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यूनिट में देखिए देखिए फाइंड द वॉल्यूम एंड मास। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है हमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। तो फार्मूला तो कम से कम हम लिख ही सकते हैं, वो कुछ ना कर पाए, एटलीस्ट फार्मूले लिख दीजिए, dx dy dz। और मास का क्वेश्चन, मास के लिए क्या फार्मूला होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो, रो मीन्स डेंसिटी, dx dy dz लगा के सोल्व कर दीजिए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से इतने पहले रीजन बना देंगे, रीजन बना के चेंज ऑफ ऑर्डर करके बताएंगे। ये यहाँ पे देखिए आ गया ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम में वेरीफाई करना है ग्रीन थ्योरम।
तो हमारे पास ये है सिंगल इंटीग्रेशन, ग्रीन थ्योरम इसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी, देन हम इसको सोल्व करके बता दें। ये लास्ट वाला होगा हमारा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके अंदर फाई क्या है, ये पूरा फाई है इसमें, ये होल इज फाई, ये फाई है। और इसके अंदर हमारे पास ए क्या है, इन द नॉर्मल टू दिस, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा हमारा ए क्या होगा, नॉर्मल टू दिस गिवन सरफेस, फाइंड आउट करके बता देंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये एक सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर को हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसको जो है एक बार देख सकते हैं, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, राइट। इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप क्या इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर पंकज गोयल। और इसमें चैनल में जब आप जाएंगे यूट्यूब चैनल में, तो इसके अंदर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में मैथ 1 का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये सारे की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।